Hello, everybody. Welcome to our second guest feature for IndieCast, where we have multiple guests with us, very special guests. So we have today with us the entire team of the platform which is known as Delhi Dehat, which speaks about the culture, the history, and the welfare of the indigenous communities of Delhi, which over the course of history have become slightly easy to overlook. To my right, I have Gagandeep Bhai, who's a lawyer and a filmmaker and one of the founders of Delhi Dehat. To my left, I have Parth, who is a graduate of journalism and also very involved in their team. And to Parth's left is Puneet Bhai, who is a student of international relations from the JNU and now working with the UNICEF. And it's their project which has brought this very significant issue to us, especially considering the political landscape, which is the flavor of the season, because the Delhi Assembly elections are inching close to us. We also have a friend of our podcast and a friend of jazz and a very dear friend of mine, Dhruv Yadav, also a native of Delhi, also a lawyer based in Delhi, and one of the most talented people that I know. And you, me and Jay, you guys already know. Yeah, the usual crowd. So the usual crowd. So we'll begin our conversation. So guys, just I will first give the mic to Puneet ji, and we apologize for our shoestring budget, but as we are still a very young podcast, so you have to do with it. But But you know, the content that we're offering is I've been fantastic. told that there's a sense of romanticism to it, that it Yeah. almost looks homely and Yes, innocent. of course, of course. Because all these people have these fancy cameras. Yeah, Raj is the producer. So I'll give the mic to Puneet ji, and you can introduce and आप बताओ आप करते क्या हो and what is the purpose of Dilli Dehat. Here you go. Thank you, thank you. I think first of all, thank you so much for this opportunity, and I would like to say that I have been working in the uh, disability advocacy space for like 6 years now, and I have worked with organizations like NASA, UNICEF, and with lot of departments of Indian government. But then I realized that I have been doing pretty much good in my life, but what about my people? What about my history? What about my village? And then not only my village, all these villages in Delhi, like we always say 360 villages are there, which is a point to be like debated on, like how many villages are actually left, which we can actually talk about. But the intention of the Delhi Dehat project, which we have started, is that to present that we exist and we have always been existed in this land, and maybe we are forgotten, maybe we are not given that much of importance in right now. Yeah, so So what you're trying to say is that जो दिल्ली का इन जनरल एग्जिस्टेंस था वो एक तरीके से ओवरशैडो हो रहा है ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन और कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की जो ट्रू नेटिव पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं इस अर्बनाइजेशन की वजह से छुपी जा रही है उनके जो राइट्स हैं उनको उतनी आवाज़ नहीं मिल रही है एंड जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फॉर दिल्ली टू become this mega project that we see, the capital of this country, they are not getting their due share. एक बार मैं गगनदीप जी और पार्थ जी और फिर ध्रुव, आप तीनों का पर्सपेक्टिव इस बात पे भी लेना चाहूँगा कि जैसे मेरे लिए आपका मैंने कल पोस्ट देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे लिए लाडो सराय का मतलब हमेशा कुतुब गोल्फ कोर्स रहा है और हंसी की बात भी है मगर उसके इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट फर्स्ट मेक्स यू लाफ बट देन यू थिंक दैट दिस इज़ अ सीरियस इशू, राइट? तो आप एक बार बताइए कि ये रैपिड अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट आप दोनों के एक्सपीरियंस में, आप तीनों के एक्सपीरियंस में और उधर की कम्युनिटीज़ में, आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स में कैसा रहा है और उनके बारे में बस थोड़ा बात करें. आप You can do guys back and can- forth. back- you guys can go back and forth. Okay, no issues. So, that's- मुझे लगता है कि जब the whole concept of nation building is for this whole globe is very new, because I think India was one of the first nations to be constructed in the, say, after Germany, India was one of the newest nation, and the
the responsibility of nation building always falls on the capital. So it fell on Delhi. And when it fell on Delhi, it fell on the natives of Delhi, people who were here. And I think people here were generous. I think the whole country was generous, but because we were in that geography, we had this bigger responsibility कि हम कैसे contribute कर पाएंगे. And I think nobody hesitated ever. Any village. आप कभी भी किसी भी गांव वाले से पूछेंगे तो वो इस पूरी नेशन बिल्डिंग के कभी खिलाफ नहीं रहा है, ना कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करी गई. फॉर एग्जांपल जैसे हम रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस पूरी गांव पे बसी है, JNU पूरा ही गांव पे बसा है, जामिया यूनिवर्सिटी पूरी ही गांव पे बसी है. एंड अगर हम हिस्टोरिकली देखें, दीज आर नॉट एक्वायर्ड लैंड्स. लोगों ने वॉलंटियर करके ज़मीनें दी कि हमारे घर के पास यूनिवर्सिटी बने, पूरे देश के बच्चे आके पढ़ें और देश बढ़े. तो पर हमारी मतलब मिलता है हमारे प्रोजेक्ट की सिर्फ यही प्रयास है कि इस कंट्रीब्यूशन का कोई एक तरीके से ट्रिब्यूट तो दी जाए. देयर शुड बी अ ट्रिब्यूट. वी आर नॉट अगेंस्ट दिस होल प्रोसेस, वी जस्ट वांट अ लिटिल ट्रिब्यूट. So just to add to what Gagandeep said, firstly I'll give my introduction first. I am from a village in West Delhi on the banks of the once Saibi River, which is now called the Najafgarh Drain. So I come from Niluthi village. So about the project, I would like to add that our basic aim is to just put things out, because there's nothing out there. So there are no records. There's just oral history that is passed on from generations to generations. So our aim is to create a digital archive, get villages their records through going through the court process, and then getting them their old archival images if there is any. And so our basic aim is doing that. And regarding the point of urbanization that my brother mentioned over here, I would like to add that there's one particular interview of, I think, Ravish Kumar, where he said that communities in Delhi, be it any like Jats, Gujars, or any of the landowning communities, are the most welcoming in India. That's why Delhi has not seen any widespread protest of natives, and that's why maybe the rest of the country does not know about them. So when things go to other states, there's of course agitations that happen, but Delhi hasn't seen any. But now that the things have actually gone over their head, some panchayats are started to be organized. So I think I would like to end here and pass it on to Rohit. The Najafgarh drain that you were talking about, it reminds me of how flawed the economic and social impact assessment is under the new act. So this is where it was all, this all went bad. So in the previous land acquisition regime, we had no environmental assessment, no social assessment, etc. So all the problems which we see in urban Delhi, they can be traced back to how unruly the acquisition, the initial acquisition was. अगर आप लोगों का गांव आपके गांव में तब एक्वायर हुए थे ड्यूरिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस, तो आप लोगों को पता होगा व्हाट वेंट डाउन. जो अभी लेटर एक्विजिशंस हुई हैं आफ्टर द 2013 एक्ट, जो आउटस्कर्ट्स में है नजफगढ़ वगैरह में, दे आर स्टिल ओके. बट the previous, the initial acquisitions, what happened was, for instance, in my village, acres of land was taken away in like 6 lakhs or 10 lakhs, and this was substantial amount of land, जिसका वैल्यू हजारों करोड़ों में होगा. उस टाइम पे इस अमाउंट में चला गया था, और उनका सब्सिक्वेंटली रिहेबिलिटेशन हुआ नहीं. तो अंडर द न्यू रेजिम वी हैड प्रोविजंस फॉर रिहेबिलिटेशन. We also had provisions for SIA, social impact assessment, जिसमें again there is a problem कि कुछ जगह I guess गगन भाई का भी उस चीज़ में मैं व्यू चाहूँगा, कुछ जगह exceptions create कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत, assessment की ज़रूरत नहीं होगी. अब environmental issues भी अगर देख लेंगे, अगर हमारा रिज हाई कोर्ट ने बचा लिया, बट वो भी कभी नहीं बचता अगर एक्विजिशन उसी तरह से चलती रहती. और वो जो नजफगढ़ ड्रेन भी है, इट यूज्ड टू बी अ लेजेंड रिवर which was turned into a drain because of how the government continuously it alienated these natural resources. And again, if you look at the social, the cultural lag which exists in rural and urban Delhi, and in fact even in villages which have now been urbanized,
that again can be traced back to how unruly the acquisition was. It was very chaotic initially, how it happened, because these people who were largely agriculture based communities, उनका तुमने प्रोफेशन ओवरनाइट या विद इन मंथ्स ले लिया और उनको रिहेबिलिटेट कर नहीं पाए लोग ना। तुमने ये देखा कि उसका सोशल इम्पैक्ट होना क्या चाहिए। मैं पुनीत भाई का भी व्यू देना चाहूँगा। Just to add on that, जो I always talk about these things with my parents and with the other adults, I see उनकी आत्माएं ना अभी तक they are shaking, उनकी आत्माएं अभी तक काँप रही हैं। They have not been able to accept that. They still living in that era. खेतों के एरा पे अपने खेतों की बातें बताते हैं। और मेरा गांव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है विच हैव बीन नॉट डिस्कस्ड। इट इज सैंडविच बिटवीन संगम विहार एंड सैनिक फार्म्स, देवली गांव। या सो हमने अपनी ज़मीनें सैनिक फार्म में भी खोई हैं और हमने संगम विहार को बनते हुए भी देखा है। और वो इंटरेक्शन इतना इंटरेस्टिंग था कि जब आसपास के गांव वालों को हमने पागल बनते हुए देखा ना, तो हमारे बुजुर्ग ये बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आ गई है, ज़मीन अक्वायर होने वाली है, लेकिन आसपास के गांव वाले लोग थे वो आ रहे हैं हमारे पास। और जो बोलते हैं ना बिजनेस माइंडेड लोग हैं या जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारे बुजुर्ग ये बातें कर रहे हैं उस टाइम पे कि ये तो कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा, और पैसा भी नहीं मिल रहा, और प्लस आपका गांव की स्थिति वही रहेगी। जो लाल डोरा है उसको तो कोई छेड़ने वाला नहीं है। हमें ना तो पार्क मिलने वाला है ना स्कूल में मिलने वाला है। तो हमारे पड़ोस के जो गांव हैं, जो खानपुर, खिड़की, तुगलकाबाद, इनसे हम सीख रहे हैं। तो उसी इंटरेक्शन में संगम विहार कटना स्टार्ट हुआ, जो कि अभी हम आर्ग्यूबली इसको हम बोलते हैं कि एशिया की सबसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसको बोलते हैं। इट ऑलमोस्ट लाइक अरावलीज के अंदर तक गया हुआ है वो संगम विहार। इफ़ यू शूटिंग रेंज जो पड़ता है पूरा, जी। तो हाँ जी। तो वो जब वो पूरा कट रहा है, सरकार को पता है, सरकार के पास कमीशनें जा रही हैं, सबका अपना कट है। और वो इतना इंटरेस्टिंग है कि नोटिफिकेशन अभी तक मैं अपने दादाजी के कज़न के पास जाता हूँ, उनके पास नोटिफिकेशन सारी पड़ी हुई, उनका बक्सा पड़ा हुआ है कि वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि देखो ये नोटिफिकेशन आया था। और लोग काटते गए, लोगों को कमीशन मिलती गई। और अब जो गांव की स्थिति ऐसी है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन इधर संगम विहार और सैनिक फार्म्स वाले हमेशा बोलते हैं कि ये रास्ता प्राइवेट है, यहाँ से नहीं आ सकते आप। एंड दैट इज़ द ओनली टाइम हमारे गांव में पंचायत होती है। और पंचायत में चाहे और किसी चीज़ के लिए हम इंक्लाइंड होना हो, लेकिन रास्ते लेने के लिए हम बहुत ज़्यादा हम यूनाइटेड हो जाते हैं कि रास्ता नहीं छोड़ सकते हम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। So actually the topic about Sainik Farms route, वो तो इतना ज़्यादा मिसमैनेज्ड है। फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग सैनिक फार्म्स कॉलोनी बनी थी 1965 के वेटरन्स के लिए, और फिर वहाँ पे वेटरन्स नहीं आए। तो बेसिकली उन्होंने वो कॉलोनियाँ काटनी शुरू करी और प्राइवेट लोगों को बेचना शुरू करी, और वो कभी कॉलोनी रेगुलराइज ही नहीं हो। वो इतनी वहाँ पे ना तो उनका कोई ऑर्गेनाइज स्विच सिस्टम है, और मतलब वो कॉलोनी का कुछ प्लान भी नहीं बना है। दैट्स वो दिखता है, आप वहाँ पे जा रहे हो तो वो पूरा ऐसे रास्ते में आप देख रहे हो टाइल्ड है, एंड अप्रोच भी इतना ख़राब है। ऑब्वियसली उसके ऊपर से लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। वहाँ के लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई ये जगह कैसे, यहाँ पे कैसे आ गए तुम, एंड ऑल ऑफ दैट। इसमें मैं बस एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि वो शायद एग्रेरियन लैंड के पर्पस से फौज को भी देने वाले थे। और अब इसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू द ग्रेट डिस्क्रेडिट ऑफ द इंडियन स्टेट कि शायद CLU करना मुश्किल हो गया या बिल्डर लोग इन्वॉल्व हो गए, और उस सबको फिर आप एक क्लियर पाथवे आगे दे नहीं पाए, तो गांव के लोगों की भी वेलफेयर हमने छीन ली। और एक इम्परफेक्ट सिस्टम में बस एक बिल्डर या बिजनेस पर्सन टाइप माइंडसेट वाले लोगों ने अपना कट ले लिया, और अब हम एक बहुत ही इम्परफेक्ट पार्शियली इफेक्टिव आउटकम्स की ज़िंदगी में जी रहे हैं, जहाँ पे जैसे आप की जिनकी शायद ज़मीनों पे वो कॉलोनी बनी है, अब उन्हीं को एक्सेस रूट के लिए पंचायत रखनी पड़ रही है। जी, बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है शेखर गुप्ता का। ही हैज़ रिफर्ड सैनिक फार्म्स एज एन आइलैंड, एज ए रिपब्लिक ऑफ इट्स ओन, कि इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ नहीं चलते। और अभी पिछले 2022 में देयर वाज दिस गाय कॉल्ड
he is actually researching on sanic farms, and he called me कि मैं I was like inclined on all of these things, so he wanted to know the perspective of villages. So he contacted me और फिर हम पूरा सैनिक फार्म्स में हम घूमे. तो to get the access to Sanic Farms, he actually rented a whole house there. So he's being sponsored by some university, so he can pay all of this rent. But he have to like, get that whole कोठी rented कि भाई मैं लेता हूँ, नहीं तो ये लोग घुसने भी नहीं देंगे. तो वी वर लाइक रोमिंग अराउंड प्लेसेस, और जो भी RW वालों से हमने बातें करी, तो दे वर लाइक वेरी कि यार ये संगम बिहार के लोग, ये देवली के लोग, दे यूज आर एक्सेस रोड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड दे इट शोज हाउ दे सी अस. या You know, on the contrary, if you look at, as you said, these rural communities have been so welcoming. और अगर आप एक चीज़ नोटिस करना, सारे रिफ्यूजी स्टडीज़ जो आज की तारीख में हो रही हैं, ऑल ऑफ दीज एकेडमिशियंस they've been focusing so much on how good the government did, and they've been applauding the government and how well they, you know, rehabilitated the refugees during the initial refugee crisis. बट ये कोई नहीं देखता द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका रेपरकशन अब आ रहा है. DDA प्लान निकाल दिया 2041 का. अब वो उसमें कह रहे हैं ये जो बची कुची हैं इनको भी अर्बनाइज कर देंगे. लेकिन आई थिंक मतलब अभी काफ़ी टाइम है 2041 तक, लेकिन आई थिंक दैट ऑल्सो नीड्स अनदर लुक, क्योंकि तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों से एक बार सीखना चाहिए कि तुमने क्या गलत करा था उस टाइम पे. So just to add to that, the land that is left in Delhi, there's a substantial part of Delhi which is still rural or not necessarily owned by a farmer. Some builders have also got into it due to the land pooling policy. But I would just like to briefly tell about the policy, why it hasn't worked till now. So it was, I think, brought by the Congress government back in after the 2010s, and till now there have been certain modifications in it, but it hasn't been implemented successfully. Why so? Because it says that the onus is on the farmers to collect the land, to bring the land to the DDA, and to develop the remaining part of the land, which will be given to them, which is in 60-40 ratio. So ये तो सुनने में इतना और लगता है कि एक घर में ही झगड़े हैं. You expect farmers to collectively develop a zone of DDA. तो I don't get the point. So that on top of Yeah. the fact that on top of the fact that they have essentially urbanized all villages, यहाँ पे पंचायत नहीं आती, and which brings me to the Gram Nyayalayas Act, which is an ongoing issue before the Supreme Court as well. उसमें I also appear a lot of times for the state of Andhra, and मैं भी काफ़ी passionate था, because when it comes to villages, I'm sort of a Gandhian. मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो सकता है गवर्नेंस उतना होना चाहिए, और इसमें सबसे आगे पंचायत ही रहेंगी. तो ग्राम न्यायालय एज एक्ट वाज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स दिस एज वेल, दैट यू लीव द जुडिशरी ऑल्सो टू द लोकल पीपल, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ होती है नेचुरली. बट दिल्ली सरकार अब ऑन एफिडेविट ये बोल चुकी है कि क्योंकि यहाँ पे विलेजेस बचे ही नहीं हैं, हम अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है. सो वी आर ऑल्सो बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज quote unquote welfare schemes. It could be argued it's a welfare scheme. So it is all because हम actually उसको फोर्स ही ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ तो गांव बचाने ही नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ अर्बन एरियाज होने चाहिए. इसमें मैं बस एक बहुत क्रूशल चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति हाईलाइट करने की कोशिश करता है दैट दीज आर द कंसर्न्स ऑफ द फॉर्मरली आई एम यूजिंग द वर्ड इंटेंशनली, क्योंकि आपने पुश आउट कर दिया फॉर्मरली द इंडिजिनस कम्युनिटीज़, दैट द पॉलिसी प्रायोरिटी डज नॉट लुक एट देम एनी मोर. सो द काउंटर टू दैट इज़ पीपल ऑलवेज से कि आपने तो मुआवजा ले लिया, आपने कॉम्पनसेशन भी ले ली और आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो. बट ये कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म ही इतना फ्लॉड है, क्योंकि जैसे आपने कहा भाइयों में लड़ाई होती है, फैमिलीज़ में लड़ाई होती है, तो इट्स टोटली पॉसिबल, एंड आई एम श्योर यू गाइज नो मैनी एग्जाम्पल्स एज वी ऑल इन डिफरेंट एरियाज अराउंड ऑल ऑफ द कंट्री ऑफ land acquisition compensation, whether by the government or even by big builders. What happens is that whoever has access to paperwork and all of that can sell the land, become very rich, become very affluent. ऐसा भी हो सकता है कि एक भाई तो बहुत अमीर हो गया और एक भाई ऑलमोस्ट शायद एकदम सड़कों पे आने वाली स्थिति हो गई. तो ऐसे में दोनों तो मान लो दिल्ली में हुआ तो दोनों दिल्ली के हैं, एक को बहुत फ़ायदा हुआ अर्बनाइजेशन का और एक की तो आपने परिवार ही ख़त्म कर दिया.
तो ऐसे में ये बहुत फ्लॉड आर्ग्यूमेंट लगता है मुझे कि लोगों को देख के ये बोलना कि ये तो कॉम्पनसेशन खा के भी बैठे हुए हैं, अब इनको और हक चाहिए। तो मैं बस एक हाईलाइट करना चाह रहा था ये पॉइंट भी। इसमें मुझे लगता है जो पूरा नैरेटिव है ये भट्टा पारसौल के इवेंट के बाद क्रिएट करने का प्रयास करा गया है कि और वो भी बिल्कुल ख़राब नैरेटिव है। दिल्ली बहुत ही सिचुएशन उसकी बहुत अलग है। एक तो दिल्ली की एक्विजिशन वन ऑफ द फर्स्ट एक्विजिशंस इन इंडिया है। उस वाले एक्ट से जो उस एक्विजिशन से करीबन 100 साल पुराना है, जैसे भाई कह रहा है, सोशल इम्पैक्ट का तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस स्टडी है, मैं जिस गांव से आता हूँ उसका नाम मदनपुर खादर है। खादर इज अ लैंड जो यमुना के साथ में है। तो अगर आप जोग्राफिकली देखो तो बुराड़ी से लेके बदरपुर तक जो दिल्ली का ये वाला स्ट्रेच है ये खादर लैंड है पूरी जी। तो और उन लोगों और हमारी उन कम्युनिटीज़ की बात भी करना ज़रूरी है जो शायद से लैंड ओनिंग नहीं है। जैसे एक बड़ी कम्युनिटी है दिल्ली में, इसको धीवर कहते हैं, पीपल हु आर फिशरमैन। तो जब आपने इन सारे गाँव को एक्वायर किया तो आपने यमुना तो बर्बाद कर दी, आपने यमुना बर्बाद करी। और मतलब कोई किसी भी रिलीजियस मॉरल आइडेंटिटी से आता हो, आपने यमुना का ना हिस्ट्री देखी ना उसका रिलीजन में कंटेक्स्ट देखा, और आपने जब उसकी ज़मीन बर्बाद करी, उन लोगों को बर्बाद करा जो यमुना पे डिपेंडेंट थे। आज उस समाज की कोई आवाज़ ही नहीं है दिल्ली में। मतलब बहुत ही ख़राब हालत है। और क्योंकि आपकी इकॉनमी जिस पे डिपेंडेंट थी, और ये रैम्पेंट चेंज है, जैसे ध्रुव भाई कह रहे हैं ना, दिस इज़ ओवरनाइट। आपको एकदम बताया गया कि अब यमुना का ठेका नहीं छूटेगा, या अब यमुना इतनी गंदी हो गई कि मछली तो है ही नहीं, या मेरी जो आइडेंटिटी थी यमुना के साथ में वो मैं कैसे इस्टेब्लिश करूं, क्योंकि मेरा तो उस पर जो एक तरीके का लाइवलीहुड थी वही ख़त्म हो गई। तो फर्स्टली मुझे लगता है कि दिल्ली का एक जो नैरेटिव है वो सारी कास्ट जो उनका लाइवलीहुड थी उसके पर्सपेक्टिव से समझना भी ज़रूरी है। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा, जो आप मुआवजे की बात कर रहे हो, एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ 50% लोगों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। जो अभी इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पूरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के केसेस हैं, उन्होंने इस टाइम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि एक आम किसान जिसका जो शायद से ग्रेजुएट भी हो, शायद से लॉ ग्रेजुएट, वो भी समझ नहीं पाएगा कि आज 2025 में दिल्ली में लैंड कंपनसेशन का क्या सिनेरियो है। तो ये कहना कि आपको मुआवजा मिल गया, और क्या मुआवजा, 10 रुपये गज। आप लैंड रिकॉर्ड्स निकालो, किसी को 25 रुपये गज से ज़्यादा मिल गया हो तो, और उस 25 रुपये गज को ऐसा नहीं कि आपको घर आके दिया गया है, उसमें आपने एक वकील प्रोफेशनल हायर करा है। फिर उस वक्त की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी जो इंतज़ार करती थी किसान आएगा, किसान को तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें हिस्टोरिकली समझना है कि दिल्ली इन 1960s 70s इज़ नॉट अ सेंटर जहाँ पे एडमिशन चलता था, इट वॉज लाहौर। तो दिल्ली के जो लोग थे वो मान तो ले गया कोई कैपिटल, पर वो इतने वेलवर्स नहीं है सिस्टम से, वो किसान आदमी है। किसान आदमियों पे एकदम आपने ट्रांजिशन कर दिया है, ना नॉलेज है ना जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो नए वाला एक्ट बड़ी जिम्मेदारी से कहता है कि हम रिहेबिलिटेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि अच्छा आपके पास 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत बड़े फ्लॉज रहे और उन लोगों को बहुत ही ख़राब तरीके से इम्पैक्ट किया। नहीं, गगनदीप जी, you raised a very important point because till now we were mostly talking about the land owning communities. The perspective of the Dhivar community is very interesting, and I had absolutely no idea about this. मैं क्योंकि I knew that there were fishing communities in and around the Yamuna, but आप देखो, मैं तो I would like to use the word genocide. इस पूरे expansion ने ऐसा लोगों को annihilate करा है कि आपने उनकी पूरी status और उनका जो means of livelihood है उसी को पूरी तरीके से छीन लिया। एंड अब यहीं पे हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट फिशरमैन कम्युनिटी कॉल्ड द कोलीज। I feel Kohlis still have a dominant role in Marathi society. They still control. अब वो अलग बात है कि वहाँ पे तो पूरा समुंदर था, तो लाइक समंदर को तो आप नहीं हटा सकते हो। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अब तो ये तो रिवरलेस भी हो गए, लैंडलेस भी हो गए, और इनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए भी नहीं है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इनफैक्ट मेरा आज नॉलेज अबाउट द सिटी वेयर आई हैव बीन स्टेइंग फॉर द पास्ट 16 years बढ़ा है। लाइक इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। इसमें जस्ट एडिंग टू इट, एक साइकोलॉजी में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल ट्रॉमा। मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल ट्रॉमा पे पूरी स्टडी होनी चाहिए कि दिल्ली के जो लोग हैं जिन्होंने रैम्पेंट, मैं तो अर्बनाइजेशन वर्ड यूज़ भी नहीं करूँगा, जो रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन देखी,
अल्कोहलिज्म पे एक स्टडी करी जाए. I know, and everybody here must have a common experience. There have been families with generations dying every 10 years, young men, and this can't be unchecked, and this can't be random. आपसे आपका जो नेक्स्ट प्रोफेशन था, जो खेती थी, ज़मीन थी, जो आपकी पूरी आइडेंटिटी थी, या समझिए नदी थी, या समझिए कि कोई बेर तोड़ता था, आपसे वो एकदम छीन ली गई. उसके बाद आपके पास कोई नेक्स्ट प्रोफेशन तो था नहीं ना. सो एंड दी इट वाज इंटेंशनल कि अल्कोहल शॉप बिल्कुल गांव के बाहर डीडीए सेंटर में खोली गई लोगों ने. एंड आई एम थिंक मैं क्या हम सभी लोग ऐसे फैमिलीज को जानते हैं जहाँ पे तीसरी पीढ़ी भी इज डाइंग आउट ऑफ अल्कोहलिज्म, एंड दिस इज जस्ट हिस्टोरिकल ट्रॉमा अनचेक्ड. I think all of us, the people from Delhi especially, हमें पता है कि हम जब अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में गए, आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि जात सुनते ही, ये सुनते ही कि हम दिल्ली से हैं, उनके दिमाग में आता था हम बहुत अनरूली लोग हैं. और ये शायद जय और राज ने भी करा होगा एक्सपीरियंस, आई एम श्योर, बीइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज, आई एम सॉरी, प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली. And my perspective on this has always been that you can't blame us for being unruly. We would definitely be unruly because of what he is telling us right now, that there has been essentially, we are displaced people. Don't look at us as people who are with land and settled. We are not settled. हमारे गांव का घर इस टाइम पे घेर में हमारे हमारे खेत चले गए थे और हम घेर में रहते थे. और इन लोगों को तुम ऐसे देख रहे हो कि ये इन लोगों के पास बहुत पैसा आ गया और ये बहुत अनरूली है, शराब पी के घूमते रहते हैं. यू गॉट टू फील सॉरी फॉर देम इंस्टेड, बिकॉज दीज आर डिस्प्लेस्ड पीपल बिकॉज ऑफ योर लैक इन पॉलिसी एंड योर लैक इन विजन. इन लोगों का सारा कल्चर ख़त्म हो गया, इनकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई, लोकल इकोनॉमीज, एंड दे वर जस्ट लुकिंग फॉर अदर वेज ऑफ लिविंग, जो उनको फिर बाद में किराए के रूप में या ज़मींदारी के रूप में, क्योंकि वही चीज़ उनको आती थी, उनको उसी रूप में मिला, और उससे जो भी इनकम आती थी, दे डिडंट नो हाउ टू स्पेंड इट विदाउट अ कल्चर. So just to add to that, what happened after the lands got acquired? Some families got destroyed basically because of alcoholism, or some families, men went to search jobs in the main white collar jobs and everything. So there was this whole stigma about being a dehati. Like he said, we went to private schools, we were privileged enough. And this is also at the same time a different narrative that is being pushed, that Delhi landlords are very rich and Delhi villages are very rich. No one looks at the communities that didn't have land or had small land substantially. So what happened with me, I'm going to share a personal experience, because I was also caught in this narrative. My father was a pass out of law faculty. So he used to talk in English, he used to talk in Hindi, and he used to talk in Haryanvi as well, depending on the other person. So when he used to pick me up, so there was this village next to my school, Piraghadi. So he used to meet locals over there, and he used to talk in Haryanvi. And I used to get embarrassed whenever he came to pick me, because पापा आप हरियाणवी में क्यों बात कर रहे हो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो गवारों की लैंग्वेज है. And now that I have researched about it, and I've got to know that I was wrong. I was completely wrong at that time. A lot of time to grow out of that. Yeah. एक चीज़ आई थिंक आई ऑल्सो वांट टू ऐड, आई सर्कल बैक थोड़ा. आपने जो फिशरमैन कम्युनिटी के बारे में बताया, जिनका एज समबडी हु आइडेंटिफाइज एज अ कोट अनकोट वेल रेड पर्सन, ना मुझे उनके बारे में कोई आइडिया था, क्योंकि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में हमने एक बायस बना रखा है कि लैंडेड कम्युनिटीज़ होगी, और उनके बारे में फिर ये भी बायस बना हुआ है कि ये तो रेंट खा रहे हैं, मुआवजा भी भारी मिला है, तो फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं. बट दैट माइट बी व्हाट 5%, maybe 5-6% of the whole population. The most visible The most population. visible population, because they were the ones who were able to save some land parcels, as a result become politically, financially influential. अब उसमें एक और बात है कि compensation के लिए आप अपनी ज़मीन तो दे रहे हो, और उसके लिए जैसे गगन भाई ने अभी एक्सप्लेन किया, you have to fight the whole system for a very paltry compensation sum, which a system I have worked some in little bit in real estate, because हमारी भी कुछ inheritance थी बिहार से, तो उसको navigate करना एक बहुत पढ़े लिखे आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है. To expect farmers to do that, and then for the state to say that okay, my responsibility has ended because I have given compensation no matter what amount it might be, that is a very flawed way of urban development. And I think that
the indigenous people, whether in Delhi or maybe NCR or other parts of the country, not only have they been wronged, there needs to be a policy priority to correct this Yeah. historical wronging. To add to what Dhruv bhai and everyone else was talking about, like the stigma that was developed against the natives, it's something that us Biharis relate to very well. Specifically, growing up with so many stereotypes and all. So, like that there was this longest time where it became very hard for all of us. I mean, the two of us came from extremely privileged backgrounds, and even after that, we used to hear like backhanded comments about how Biharis dress or how they speak, and like हम लोग अपनी भाषाओं से बहुत afraid रहते थे कि भाई कोई हमारा accent ना सुन ले and all of that. बट फिर इवेंचुअली हमारे लिए आई थिंक सबसे क्रेजी बात ये रही कि हमारी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से हुई सबसे ज़्यादा who had actually faced the same thing in Delhi, and that's where Ravish Kumar also saw a perspective. He's also from Bihar, right? So that's where there's a common ground where देहात को आइडेंटिफाई Exactly. करने वाला, और हम लोग Yeah. तो कोट अनकोट शायद रूरल एरियाज में उतना रहे भी नहीं है. और आई हैड दिस डिस्कशन विद समबडी. जय रोट, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जय रोट समवेयर दैट आई एम इन गोइंग थ्रू रूरल हरियाणा, एंड समबडी रोट ओ देयर इज नो रूरल हरियाणा. एंड वो बंदा यहाँ का है, हरियाणा का रहने वाला है वो बंदा. वो बंदा हरियाणा का रहने वाला है. मैंने बोला भाई तू कैसा बंदा है यार. कहता कि हर जगह एसी है, टीवी है, अब क्या रूरल रह गया. मैंने कहा आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी लिमिटेड है कि आप बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलिस्ट है. आप टेक्नोलॉजी से एक जगह को रूरल, और तो दैट्स माय थिंग इज दैट मे बी वी कैन गेट डाउन टू, जैसे पार्थ भाई ने अभी देहात शब्द का यूज किया, देयर इज अ वेग डेफिनेशन टू इट, राइट? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, स्पेशली बिकॉज सो मच ऑफ द कंट्री इज नाउ सेमी अर्बन. सो Google says being a Dehati means basically being a Gawar. I just searched for it. Absolutely, and also talking about giving such an example. Our inspiration for starting this kind of a project was a page called Bhasha Kosh. Okay. So there is this guy called Akshay. He was born and brought up in Mahipalpur village, originally from Bihar. And he love हरियाणवी, he talks in हरियाणवी because उसने बोला ना कि मैंने अपने मकान मालिक को देख के सीखा, है ना. और उसने हमको इतना अच्छा एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच दिया. ही एक्चुअली प्रूव्ड ए पॉइंट कि दिल्ली की भाषा हरियाणवी थी. दिल्ली में ये गांव थे, साउथ दिल्ली में उसने पूरा काम किया. ही रिसर्चिंग अबाउट द विलेजेस इन South Delhi, and then also he did a linguistic kind of a demarcation कि यहाँ पे हरियाणवी की ये बोली जाती थी. देशवाली हो गई, हाँ, आहिरवाती हो गई. So it's a wonderful work just coming out from a person like. उसको हम बोल सकते हैं ना बिहारी है, लेकिन मैं तो उसको बोलता हूँ यार ये गाँव का है, ये he is from a Delhi village because he identifies as one. तो आई थिंक हमें ये भी देखना चाहिए ना कि आप रिलेट कैसे कर रहे हो. अभी बहुत से 3rd 4th जनरेशन वाले लोग भी हैं दिल्ली में. आप उससे पूछते हो तो वो बोलेंगे कि हम उत्तराखंड से हैं, हम कहीं से हैं. लेकिन अगर आप बोलते हो ना कि आप दिल्ली से हो, तो आई थिंक वी शुड ओन अप दैट आइडेंटिटी एज वेल. या नहीं, बात बिल्कुल सही है. There are a lot of things that Raj and I were experiencing as we were growing up, and उसमें ये बात बहुत आती थी कि भाई आपकी आइडेंटिटी कहाँ है. एंड या आई मीन अब तो भाई मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं लोगों को बोलते हूँ कि मैं दिल्ली का ही हूँ. एंड वही है कि as we grow older, as our perspectives increase, as we meet more people, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से ये शहर आया है, स्पेशली आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक एटलीस्ट पर्सपेक्टिव रहे लोगों का कि यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ही एक तरीके से एक पार्टीशन करके आपने एक और पार्टीशन क्रिएट कर दिया. आप समझ रहे हो, वहाँ से रेफ्यूजी आए और आपने यहाँ के लोगों को रेफ्यूजी बना दिया उन्हीं की जगहों में. सो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड. Go ahead. You can go back. We can. Fair. And also, Luxurious. let's do it in order also, na, because ठीक है. you finish. I don't want to rush anybody. No, I Some just people thought- wanted to say, because we now the locals here, now that we are very aware of what the situation was, now again I come from a very Nietzschean point of view. Jay would know that instead of looking at ourselves and our communities in a sense of pity and feeling sorry for ourselves,
we need to show some collective responsibility as well. Whenever we bring up our kids, उनको ये नहीं बताना कि देहात मतलब गवार है. और दूसरा, they have to be very well aware, and that is where I'm very grateful to you guys for what you're doing. In fact, I told my dad about it. He's also a fan now. That the following generations are very much aware. जैसे मेरे को याद है, मैं जब स्कूल में था, मेरा नाम पहले ध्रुव यादव नहीं था, मेरा नाम पहले राव ध्रुव सिंह हुआ करता था. और यू गाइस वुड नो कि हमारा प्रीफिक्स है यहाँ पे, ट्रेडिशन है, यहाँ पे लगाते हैं. तो मेरे स्कूल में किसी को समझ नहीं आता था राव का मतलब क्या है, जबकि मेरे को भी समझ नहीं आता था, मेरे घर वालों ने कभी सिखाया नहीं अच्छे से. तो एवरीवन, इवन माय टीचर्स यूज्ड टू बी लाइक, दे यूज्ड टू कॉल मी बाय द नेम राव. मेरी अटेंडेंस ऐसी ली जाती थी, राव. किसी को ये नहीं पता था कि मेरा नाम ध्रुव है. एंड आई गॉट सो एम्बैरेस्ड ऑफ इट दैट आई चेंज्ड माय नेम टू ध्रुव यादव. और अब मेरे को लगता है कितनी घटिया चीज़ थी, क्योंकि राव ध्रुव सिंह साउंड्स मच बेटर. एब्सोल्युटली. और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, हमारे आसपास के जो स्कूल होते हैं, दे ऑल्सो एक्टिवली, इवन समटाइम्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, डिस्क्रिमिनेट लास्ट नेम से. अगर कोई तंवर है, और जैसे हमारे यहाँ डागर, और हमारे यहाँ गांव में जैसे सिंगल तो ज़्यादातर आउटसाइड तो होते नहीं है, लेकिन जो सिंगल जब आप पढ़ते हो कि देवली के यू आर सिंगल, इसको बाहर ले आओ, इसने करा होगा, इसको प्रिंसिपल ने बिना बात की, मेरा भाई बिना बात की पिट रहा है, उसने कुछ नहीं किया, कुछ पटाखे फोड़े नहीं है उसने, वो बोल रहा है मैम मैंने नहीं फोड़े, बोल रहा है इसने कराओ, इसको ले आओ. तो ये एक्टिवली थोड़ा सा ये होता है ना कि ये गांव के बच्चे हैं, है ना. अभी कुछ स्कूल्स ने तो आई वाज इन ए फॉर स्कूल, अभी तो वो लोग बोल देते हैं कि नहीं मिलेगा एडमिशन. आई वॉज द लास्ट जो बैच, उसके बाद हम लोगों को एडमिशन मिलना बंद हो गया है. वो कोई और रैंडम रीज़न देते हैं, वो ये रीज़न नहीं दे सकते, बट वी नो दैट दिस इज़ द रीज़न टू नॉट गिव एडमिशन. मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, अगेन मैं बहुत चीज़ें प्रोसेस कर रहा हूँ एज वी गो इन द कॉन्वर्सेशन. तो जैसे ध्रुव ने कुछ देर पहले कहा था कि हमेशा एक बायस बन गया कि दिल्ली और दिल्ली से एडजॉइनिंग एरियाज़, चाहे हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, वहाँ के लोगों के बारे में परसेप्शन है कि बहुत अनरूली होते हैं. और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा रहा है, क्योंकि अब 15 साल रहते रहते तो मुझे भी दिल्ली एनसीआर में हो गए, तो एक ओपिनियन बनाने के लिए तो इनफ टाइम हैज़ पास्ड. तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा वेलकमिंग, सबसे ज़्यादा वार्म, सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लोग भी यहीं पे रहते हैं. मैं DPS RK पुरम में भोपाल से आया, सहमा हुआ सा था, बड़ा पोलाइट सा बच्चा था. और दिल्ली के चाहे फिर सेकंड जनरेशन, चाहे पंजाबी फैमिलीज़ हो यहाँ की, तो सब में थोड़ा सा राउडीनेस ज़्यादा रहती है. मैं डरा रहता था. तो माय बेस्ट फ्रेंड वाज अ गाय विद द लास्ट नेम बसोया, दिल्ली का ही गुजर कम्युनिटी से था. तो मैं आगे जाके जोक मारता था कि हम इतनी बदमाशी करते थे, क्योंकि हम लोग मतलब क्लासरूम लॉक कर देते थे, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनी ऑफ इट. और पूरी क्लास हमसे डरती थी, क्योंकि दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक अ Delhi गुजर एंड अ बिहारी भूमियार एंड यू पुट हिम इन द सेम क्लास. इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन. और मैं आई डोंट, एट द रिस्क ऑफ, आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड कास्टिस्ट और कम्युनल, बट एक तरह का इंडियरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो हम लोग आपस में फॉर्म कर सकते हैं. आई फील लाइक दैट्स अ वेरी मच मोर रियलिस्टिक आइडिया दैन ट्राइंग टू मेक अस ऑल कास्टलेस, कि आप अपनी कम्युनिटी से आइडेंटिफाई ही मत करो, बट आप अपनी कम्युनिटी से थोड़ी प्राइड ड्राइव करके एक दूसरे की इज्जत भी तो कर सकते हो, rather than कि oh you're just all Indians. It's a less in controversial take. बट मुझे लगता है कि हमें अपनी कास्ट आइडेंटिटी पूरी तरह से नहीं पीछे छोड़नी चाहिए, और चाहे रीजनल आइडेंटिटी भी हो, या एग्जैक्टली कम्युनल या रीजनल आइडेंटिटी, वी कैन डिराइव सम प्राइड आउट ऑफ इट. एंड वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट, सॉरी मैं लंबा उस पर चला गया, बट जस्ट फिनिश अप. वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द रूरल कम्युनिटीज, इंडिजिनस कम्युनिटीज हियर, लाइक इट्स अ थिंग दैट हैपेंड इन द 1940s, but it's still ongoing. Gurgaon is growing, Dwarka Expressway is growing, Noida is growing, it's eating into the villages. और हम लोग आज भी ये नहीं पूछ रहे कि वहाँ की villages, वहाँ की यूथ पे क्या impact हो रहा है. The outward migration from Punjab and Haryana to North America is so huge. क्या इन लोगों को ड्राइव कर रहा है कि आप अपनी यहाँ पे ज़मींदारी छोड़ के भाग के वहाँ पे टैक्सी चला रहे हो, या वहाँ पे डोर डैश कर रहे हो, और वहाँ पे फिर लोगों से गालियाँ खा रहे हो, लात खा रहे हो. एंड दिस इज़ एन एक्टिव फ्लॉ ऑफ द इंडियन स्टेट, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इनफ टू रिटेन आर ब्रदर्स, यू नो, अपने ही लोग हैं. दैट्स वेयर आई एंड इट एट.
एब्सोल्युटली ना, लाइक अर्बनाइजेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना. वी आर नॉट डिनाइंग दिस पॉइंट. एंड ऑल्सो अभी वी आर ऑल्सो लर्निंग, जब ये प्रोजेक्ट की बात आती है, वी आर नॉट सेइंग कि ये गलत हुआ या सही हुआ, ये हो गया, और वी आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग कि ये हुआ है ना. और जैसे कि अभी हम बहुत बड़ा एक केस स्टडी है, मेरी माँ की नानी जी, शी वर फ्रॉम ए विलेज इन जेवर. उनका गांव पूरा अक्वायर हो चुका है अब जेवर एयरपोर्ट के लिए. मैं उनके बारे में ये सोच रहा हूँ, लाइक उन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे समझ में आ रहा है कि उनका गांव नहीं रहेगा अब, यादव में ही रहेगा. उनका खेत, उनकी आबादी, ऑल हैव बीन वॉश्ड ऑफ. और ऐसे कम से कम 150 गांव हैं जो एयरपोर्ट के अंदर आने वाले हैं, खत्म बिल्कुल रूट से. तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग एंड फॉर देम एज वेल, और इवन लाइक एक्सपेंडिंग टूवर्ड्स बैंगलोर एज वेल. जो बैंगलोर में जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि आपको कन्नड़ बोलनी है, हाँ कन्नड़ आपको बोलनी है. आई थिंक I can understand them, and we all can understand their insecurity, and they have been not just been able to articulate their emotions. It's a very complex emotions, वो अलग अलग तरीके से manifest होगा. And we have to find our ways to actually start a conversation around this transformation. And we have to look for ways to pacify this, because what happens is that अगर आप इन सारी insecurities को बढ़ने देते हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में वायलेंस में रिजल्ट करता है. अगर स्टेट वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो फिर वो स्टेट को they have to be okay with people revolting. तो वो आएगा, कहीं ऑटो वाला ऐसे किसी को हरास कर रहा है, तो किसी को गाड़ी से बाहर फेंक रहा है, शीशे वीशे तोड़ रहा है. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी ट्रू. एंड इनफैक्ट जैसे आपने जेवर एयरपोर्ट की बात करी, देयर आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. बिफोर दिस वी टॉक्ड अबाउट rampant alcoholism in Delhi NCR. This is a point that Gagandeep ji made, and मैं आपके साथ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ. Why is गुड़गांव, हरियाणा considered to be the place where you get the cheapest alcohol? ये स्टेट का एक तरीका है मासेस को कंट्रोल करने का. यहाँ पे पता है कि लोग यहाँ के पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, यहाँ के लोग एक्चुअली इंडियन स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं, तो इनको दबाया किस चीज़ से जा सकता है? सबसे ज़्यादा नशा डाल दो, अल्कोहल डाल दो. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस खत्म कर देते हो, आदमी को दारू से नम कर. Exactly. तो दारू सबसे ज़्यादा सस्ती है. I mean, it's now, instead of a person who actually trying to raise his voice for good things, for people's rights, that theka, this theka, that theka. Oh, I'll just get a bottle. Yeah, that is number one. Number two, with respect to the number two, the conversation around Jewar Airport. Jewar Airport में जो पहला acquisition हुआ था गांव का, वहाँ पे basically sociologists गए और उनको पता चला कि people became alcoholics immediately after that. So there is a pattern that I'm seeing. And if we don't nip this problem in the bud, it's a disaster waiting to happen. And फिर मैं नहीं expect करता हूँ इंडियन स्टेट को, भाई ये कैसे हो गया? बिकॉज वही ना, फिर क्या होता है कि आप इवेंचुअली लोगों को कंट्रोल करने के लिए जातिवाद पे लोगों को लड़वाते हो. कॉम्युनलिज्म जब खत्म हो जाएगा, पहले तो हिंदू मुस्लिम करवाओगे, हिंदू मुस्लिम जब खत्म होगा, फिर आप जातियों में लड़ाई कराओगे. ये बिहार का परफेक्ट एग्जाम्पल है. पहले आपने बिहार में 87 में भागलपुर दंगों के बाद मुसलमानों को दबाया. जब भागलपुर दंगे हो गए, फिर आपने यादवों को, भूमियारों को, कुर्मियों को, सबको एक दूसरे से लड़वा दिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की भी लोग, बिहारीज आर ऑल्सो पोलिटिकली वेरी एक्टिव. तो दैट इज द ओनली वे यू कैन कंट्रोल देम. एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट की गलती है. जिस तरीके से इंडियन स्टेट ने स्पेशली नॉर्थ इंडिया को ट्रीट करा है इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू हैपन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एवरीथिंग वी शुड ऑलवेज से कि नहीं, ओ वी आर अनएजुकेटेड, ओ वी डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली. नहीं, इसमें एजुकेशन की गलती नहीं है, इसमें स्टेट प्रैक्टिस की गलती है. आपने होने दिया ये सब. Why is it that Biharis are the biggest inward migrant communities? Because from early 90s till 2000s there was so much violence happening. आप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज सकते थे, कोई लोग उठा के ले जाते. वहाँ पे भी होता था. एक पूरा जनरेशन है बिहारियों का जिन्होंने अपना कास्ट नेम, अपना सरनेम ही छुपाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे उनकी कास्ट आइडेंटिटी डिराइव हो जाती थी. एंड इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं. मैं अपनी कम्युनिटी को भी इसमें ग्रीन लाइट नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी और कम्युनिटी को भी ग्रीन लाइट. सब एक दूसरे को मार रहे थे. और उसमें किसकी गलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है. एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं करती है, तो एवरीवेयर इज गोना हैपन, एंड एवरीवेयर देयर इज गोना बी अ पॉइंट ऑफ बॉइलिंग वेयर वन कम्युनिटी विल बी एब्सोल्युटली सेग्रीगेटेड फ्रॉम ऑल द फैंसी बिल्डिंग्स, ऑल द मनी दैट्स कमिंग इन,
एंड इवेंचुअली वो तो आपको पता ही है, फिर एक भयानक रिवोल्ट होगा, कुछ 30-40-50 लोग मरेंगे, फिर आप बोलेंगे योर वी आर सो सरप्राइज। अरे हमने 2016 में देख लिया था जब एजिटेशन हो रही थी सोनीपत की तरफ, कुछ वही 25-26 लोग तो उसमें भी मरे थे। आपने कैसे उस पूरी चीज़ को बस इग्नोर कर दिया, बोला कि हाँ, ये तो कभी नहीं होगा। तो ये सब झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, और हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए इस चीज़ पे बिफोर दीज थिंग्स गो बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आप क्यों चाहते हो कि पूरा देश JNK या नॉर्थ ईस्ट जैसा बन जाए? क्यों चाहते हो आप? वो मैथियों का पर्सपेक्टिव देखो, द पीपल ऑफ मणिपुर, द इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर, लाइक स्पेसिफिकली द वैली, मैथीज ऑल्सो फील द सेम वे विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टेट। दे सेड कि भाई हमने पूरा अपना स्टेट दे दिया, इंडियन यूनियन पे आ गए, और भाई हमको हमारी ज़मीन पे लैंड खरीदने नहीं दिया जा रहा है। दैट्स व्हाट इवेंचुअली लेड टू द होल वायलेंस बिटवीन द कुकीज़। तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड a lot of people say, like, I don't know which philosopher said this, but the country's reality actually is derived from the peripheries. आपको लगता है कि मणिपुर आपसे बहुत दूर है, लेकिन वो कब दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पहुँच जाए, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। Thank you so much. I think I always draw parallels with everything from a disabled lens. I'm a person with the dyslexia and dyspraxia. I also stammer. So अब एकेडेमिया और जर्नलिज्म का क्या रहा है? जब पैरालंपिक्स में वी वॉन सम गोल्ड मेडल्स, अरे वाह, लाइक ही हैज़ ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। अब मेरे को प्रॉब्लम ये होती है, आई स्टार्टेड माई एडवोकेसी व्हेन this we say we are still disabled and we can be successful. I still stammer, but I can be a good communicator, not despite both. These are two realities of my own personalities. अब वही पैरेलल मैंने अपने गाँव में देखा, when I kind of wanted to do something, and then I called Parth and Gagandeep bhai कि let's do something, and let's add some value to the conversation. और उस वैल्यू का मतलब यही है ना, अभी आप सुनते हो, विद द साउंड ऑफ द हुक्का एंड फॉर्च्यूनर इन द पार्किंग, दीज विलेजर्स आर वांटेड टू डू समथिंग, बहुत ज़्यादा एक बहुत ही बाइनरी कॉन्वर्जेशन है ना, बहुत उसमें नुआंस नहीं है। देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। I come, we were talking about the third generation. I come from a third generation. I have lost two of my generations with alcoholism. My father is alcoholic and he doesn't live with us. अभी मैं उनका ट्रॉमा देखता हूँ ना, तो पहले तो एक टाइम पे when you are teenager you like kind of grow in hatred कि सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद I kind of understand उनका पर्सपेक्टिव, जो हम जनरेशनल ट्रॉमा का हम बात करते हैं, and then kind of initiating, I'm maybe जो इंडिया में जो डिसेबिलिटी के जो कॉन्वर्जेशन है वो इट हैज जस्ट स्टार्टेड, आई वाज प्रीटी मच इन्वॉल्व्ड कि किस तरह से जर्नलिस्ट थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर गेटिंग इन टच विद सम जर्नलिस्ट हु आर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग, आफ्टर सीइंग आवर वर्क, आफ्टर सीइंग कि यार ये कोई कुछ ऐसा नहीं है, ही इज वर्किंग विद यूनिसेफ, ही इज लाइक वी आर जर्नलिस्ट एज वेल, वी आर लॉयर्स एज वेल, कि दे आर नॉट लाइक कि कहीं से उठ के बस वो अपनी बातें कर रहे हैं कि हमको आप ये दीजिए वो दीजिए। नहीं है, वी जस्ट वांटेड आवर स्पेस इन द हिस्ट्री, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, तो ऑब्वियसली लाइक लेट्स एक्नॉलेज दैट। या I think I just wanted to give this conversation a lighter tone. Yeah. So I just wanted to bring up a question, if any of us can answer it. What is the food and culture of Delhi? Because छोले भटूरे दिल्ली का नहीं है. So if you can answer, especially because you are not natives and you would be somewhat conforming to this narrative. What is the food and culture of Delhi? मैं We'll come to this after we conclude this. नहीं, बट मैं I wanted to steer this conversation away and put the limelight on these people, because through this medium I would want you guys to shed some light on the history. Like, can you please give a brief history of all of these villages so that people watching it also get to know, and they are deviated towards your page. Yeah. I also think that because Dhruv has directed a question to you guys, I also had one. So before you guys start, I'll pose a secondary question to that. That because we have stated that there is a sense of historical trauma and a sense of injustice and historical injury to the indigenous communities of Delhi, what policy interventions can we do now as an observer that you can say that will improve the conditions of the families that stay there now?
And so that's my secondary question. After Dhruv's question, you guys can maybe take that. So I'll just leave these mics here. Yeah, please. because because we were just talking about Jaywar and Puneet Bhai ki nani. I think one important perspective of the urbanization or the development of Delhi उस नाम पे हुई कि this will be a better constitutionalized nation. I want to help the viewers and you understand the constitutional processes and the natives of Delhi. Men के बारे में हमने बात कर ली है. Let's talk about women and Dalits, जिसको हम larger political narratives में बात करते हैं. और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हो सकता है कि एक दलित और एक औरत यहाँ बैठी होती तो वो कुछ और बात करती, बट बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु आर डूइंग देयर PhDs ऑन दिस सब्जेक्ट, तो मेरे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है. जस्ट ट्राइंग टू से दैट विमेन इन ऑल द एग्रेरियन कम्युनिटीज आर लिटिल मोबाइल. उनको खेत का जाने का एक्सेस होता है. देयर टेरिटरीज आर लार्जर व्हेन दिल्ली वाज अ से एग्रेरियन कम्युनिटी, कि आज दादी सुबह गई तो आज खेत पे चली गई. So a different distance between a घर and a खेत is say 2 kilometers. So दिन में उन्होंने 4 चक्कर लगाए. They were always mobile. There was a sense of community between women. But जैसे आपने दिल्ली को लाल डोरा में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड्स ख़त्म कर दी, आई थिंक द वर्स्ट इफेक्टेड कम्युनिटी वाज द women. वो घर में सीमित हो गई. उसका सीमित होने का कारण एक और था कि अब आपके नेबरहुड में कौन आ रहा है आपको नहीं पता है. पहले आपको पता था जी फला गांव वाले लोग हैं, ये तो मुझे भी दादी कहते हैं, मतलब देयर वाज अ रिश्ता, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, आपस में गांव में एक तरीके का रिश्ता था. आई थिंक द सेफ स्पेस डाइड. उस सेफ स्पेस में क्या हुआ, एक तो औरत अपने घर के आंगन में बंद के रह गई, आंगन तो रहा ही नहीं, छोटी सी गली रह गई, और उसके साथ एडेड अल्कोहलिज्म. तो बोलते हैं एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा रैम्पेड इंक्रीज हुआ. सेकेंडली मेरा ये अपनी थ्योरी है, ऐसा लगना चाहिए था कि भाई अब दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन वाला इंडिया आ गया तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली दलित्स, क्या उनकी इंप्रूवमेंट हुई. तो अभी रिसेंटली एफिडेविट एक फाइल हुआ कि दिल्ली में एक जगह होती थी ग्राम सभा लैंड्स, विलेज कॉमन्स, जिसमें कुछ पॉलिसीज़ के तहत दलित जो लैंडलेस कम्युनिटीज़ थी उनको जगह दे दी जाती थी. अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ उस जगह को मान रही हैं, दलित कम्युनिटीज़, तो सारे सरकार के एफिडेविट फाइल करती है कि दिल्ली में तो गाँव नहीं है, अभी पॉलिसी तो लगती नहीं है. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा लगा कि शायद से अर्बनाइजेशन से जाति का ढांचा टूट जाएगा, और जाति का ढांचा इकॉनमी से टूटता है ना. इकॉनमी ख़त्म हुई, और ऐसा लगा था कि शायद से दिल्ली में जब अर्बन कल्चर आएगा तो सारी औरतों की हालत बेहतर हुई होगी. मैं नहीं कह रहा कि नहीं हुई, क्योंकि जब एजुकेशन आया तो उससे भी कुछ फ़र्क आया, बट लार्जर स्केल जैसा सपना दिखाया गया होगा गाँव वालों को कि अच्छा कॉलेज आ जाएगा. अब जैसे LSR है, LSR के रोड के उस तरफ एक गाँव है जमरूदपुर. एक स्टडी करी जाए कि जमरूदपुर के कितने लड़कियां आज तक LSR में पढ़ पाई हैं. क्यों JNU में एक ऐसा फिलॉसफी कंसेप्ट डेवलप हो गया कि जो दिल्ली के मुश्किल रीजन्स हैं वहाँ के बच्चों को एक तरीके की रिजर्वेशन मिलेगी. ये फिलॉसफी दिल्ली में किसी को समझ क्यों नहीं आती है कि दिल्ली वालों ने भी सिमिलर प्रॉब्लम्स को देखा है, क्यों जमरूदपुर वाला क्यों नहीं जा पाया सामने वाले कॉलेज में. So I think what Gagandeep bhai was earlier talking about was the जो धारा 74(4) है शायद of the DLR Act. जी. तो उसके तहत भी it is a very big issue because people do not have ownership rights. Like they are landless and they have been given plots in the Gram Sabha lands, but they do not have proper ownership of it. It's similar to the Lal Dora case. Right. So the Lal Dora case is also same. What happens there is that we do not have ownership papers of our houses. So there was this recent scheme launched by the Indian government, which was Swamitva Yojana, which aims to grant ownership rights in these abadi areas of villages. The national capital, पता नहीं क्या किस्मत है हमारी, nothing is implemented over here, and there is infighting amongst other departments and other governments over here. तो यहाँ पे I think there is a pilot project running in few villages in Delhi. उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. So the huge rents that you see coming in to landlords from the buildings, उनके पास उनके प्रॉपर कागज ही नहीं है. बिजली के नाम पे जो मीटर है और पानी के नाम पे जो मीटर है वो उस पे ही चल रहा है या गिफ्ट डीड पे चल रहा है. देयर इज नथिंग एल्स. खैर इसमें तो मैं ऐड करूँगा, ये तो शायद स्वामित्रा वगैरह और शायद ऐसे और लैंड रिकॉर्ड्स को मैप करना और फॉर्मलाइज करने के लिए और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी. उन सब में बस एक शायद नॉमिनल
पायलट प्रोजेक्ट को छोड़ के आई डोंट थिंक नेशनली भी बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है. दिल्ली का और अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे, क्योंकि दिल्ली में सब एक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि यहाँ तो सब अर्बनाइज्ड है, सब डेवलप्ड है, तो आप किस एग्रीकल्चरल लैंड शायद उतने बचे नहीं, लोग अज्यूम करते हैं, सच ना हो, तो आप किस ज़मीन को डिजिटाइज करना चाह रहे हो, ये सब भी लोगों के अजम्पशंस में ये सब आ जाते हैं. सो एंड आई ऑल्सो थिंक दैट I think it's high time that we start putting the burden of proving ownership of land on the state, because when you do that, the burden of fighting these cases will be on the government, not the owners. तो litigation cost अगर आप सरकार पे डाल दोगे, तो there is an incentive on part of the these municipal corporations, district administration की आप कम से कम ये प्रूव करने के लीगल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा. तो आप प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू कर दो जैसे चाइना में होता है शायद, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों के घर, बहुत लोगों की ज़मीनों पे या तो कोई सेल डीड रखता है रिकॉर्ड में, कोई रखता है बिजली का मीटर, और पानी वानी तो लोग इलीगली बोरिंग वोरिंग करके करा लेते हैं. तो ये सब तो एक इतना इनफॉर्मलाइज्ड सिस्टम है कि it's so badly managed that you don't even know where to start. So that's, I think. Would you be able to talk about Shikarpur? What happened like yesterday? I actually have only a brief idea about it. So Shikarpur is a village wherein recently the administration gave notices out to villagers that you have installed borewells in your farmlands. They gave a collective sort of notice to villagers over there, and they were called to the SDM office, I think. But the irony over here is that Shikarpur has water at around 30-40 feet only. So it's like just to dig up your land and you will get water. Right. Is that because of proximity to Yamuna? Ki 30 40 No, feet actually, I do not have the exact location of the village, but there's one nair that flows around it, and what happens during the monsoon is that their farmlands is almost half covered in water due to the heavy rains and everything. So yeah, this is basically the Shikarpur case. They are being punished to install bowels, and because their water is just 30 feet from the ground, I think it's very unfortunate. If you look at the initial maps of Delhi, like the ones you have shared on your page, you would realize there were so many water bodies in Delhi. And a very interesting case is that of there is an NGT order which was later on challenged before the Supreme Court, which was related to alienation of natural resources, particularly talabs, ponds, etc. State of UP files an affidavit in that, stating that there are around 500 ponds in the state of UP, which is unbelievable. मतलब कह रहे हैं 500 तालाब है पूरे यूपी में. But any which way, I'm not challenging the veracity of that claim. एक स्टेट जहाँ से गंगा यमुना दोनों जहाँ से बहती है. Yeah, but this unruly urbanization has also led to loss of community resources which these villages used. और अगर अब जाके उन गाँव में जाओगे, आप लोग भी अगर अपने गाँव में जाते होगे, they are as good as slums now. उनका इंटरनली भी प्लानिंग ऐसी हुई है और डेवलपमेंट ऐसी हुई है. बाहर तो उन्होंने सोसाइटीज़ बना दी काट पीट के, RWS बना के, बहुत अच्छी कॉलोनीज बनी है उनके ज़मीनों पे. बट जहाँ ये लोग रह रहे हैं, हाँ, वो गेटोज़ हैं. अब मेरा खुद अपने गांव में जाने का मन नहीं करता क्वाइट ऑनेस्टली. अब वहाँ ऐसी हालत हो चुकी है. एक वाली पॉइंट वाली बात पे ऐड कर रहा था. एक दिल्ली में संस्था है, इसका नाम साइकिल है. पारस त्यागी भाई बुढ़ेला से हैं. पारस त्यागी भाई संस्था को चलाते हैं. एक हिस्टोरिकल उन्होंने काम किया. उनके गांव के पीछे एक जोहड़ थी. जोहड़ दिल्ली में एक वर्ड है जो एक वाटर बॉडी पॉइंट के लिए यूज होता है. वहाँ पे साहित्य कला अकेडमी अपनी बिल्डिंग बनाने लगा. तो पारस भाई ने एक PIL फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में, स्टेटिंग की जी सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है कि आप वाटर बॉडीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते. दे हैव, और स्पेशली जब दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसे रिवाइव करने की, तो आप उससे कुछ और क्यों बना रहे हो. तो भाई PIL फाइल करते हैं. दोनों डिपार्टमेंट, DDA और दिल्ली गवर्नमेंट, एफिडेविट फाइल करते हैं, दिस इज़ नॉट अ पॉन्ड. बिकॉज भाई कमिंग फ्रॉम दैट विलेज ही हैज़ ओल्डर रिकॉर्ड्स. वो उसकी लैंड रिकॉर्ड्स फाइल करते हैं कि देखो लैंड रिकॉर्ड्स में पॉन्ड फाइल्ड है. अब क्योंकि वो लैंड रिकॉर्ड दिया ही सरकार ने, तो वो अपना एफिडेविट वापस लेते हैं और बोलते हैं जी ये पॉन्ड है, एंड इट्स अ 1 एकड़ पॉन्ड. और वो केस स्टडी, और दिल्ली में एज पर पारस भाई आई थिंक देयर 682 वाटर बॉडीज
अब एक सर्वे करेंगे तो शायद से बहुत ही कम हो जाएंगी. एंड द लॉ इज क्लियर. सो दिस इज द आयरनी कि दिल्ली में लॉ क्लियर है कि वाटर बॉडीज कन्वर्ट नहीं करी जा सकती है. रैम्पेंट कन्वर्जन है. और लोग करेंगे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में या फिर पूरे एग्रीरियन कम्युनिटीज़ में एक चीज़ है कुआं पूजन. व्हाट इज़ कुआं पूजन? वी वर्शिप कुआं और एनी वाटर बॉडी बिकॉज दैट्स अ साइन ऑफ फर्टिलिटी. कि कुआं कभी ना सूखे, सेम इनकी फैमिली में लोग आते रहें. मुझे लगता है दिल्ली के साथ ये हो रहा है कि यहाँ के कुएं भी सूख गए और यहाँ के लोग भी अब सूखने लगे हैं क्योंकि Taps are the new coolers. Bhai, just to add to it, I coincidentally met Paras bhai yesterday. So there was this journalist from a news channel that came to my village because my village is fortunate enough that has a Delhi Jal Board a plant over there, STB plant. So उधर दिल्ली सरकार ने क्या किया? They want to create Delhi into a city of lakes. तो उन्होंने नीलोठी में लेक बनाई है. तो इट इन इट सेल्फ इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि दिल्ली में जहाँ ऑलरेडी प्रॉपर झोड़ का पॉन्ड का सिस्टम था, हर गांव में कुएं होते थे, सब अपना वाटर अपने आप मैनेज कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं होती. तो उसको झोड़ को बंद करके आपने पानी को नीचे ले गए लेवल को, और उसके बाद आप लेक सिटी बना रहे हो. एंड लेक सिटी में क्या हो रहा है? आई वेंट टू विजिट द लेक इन 2022 एंड ऑनेस्टली इट वॉज वेरी वेरी ग्रेट. अब मैं गया, इट वॉज बेसिकली लाइक अ जंगल एंड रिसेंटली 5 kids वर प्लेइंग ओवर देयर एंड डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग ओवर देयर. तो आई डू नॉट ऑनेस्टली अंडरस्टैंड. और जो बुढ़ेला वाला केस था, the government agencies play along. It doesn't matter if it's from the central government or the Delhi government. So I think the Delhi government revenue department said we handed it over to DDA in 2000s, but we acquired it in 1990. So in 1990 they mention it as a pond, a jhod, but in 2000s they do not mention it as a jhod because it has dried, because obviously they have acquired it and there's no water in it. So that's how they play along with words. Now DDA says, now the DDA says that is creating a Sahitya Kala center over there, that there's no mention of any jhod on this 2000 year paper. So that in itself is very unfortunate. And what happened now was that they started digging over there. So they were trying to create a basement and the work started. So what happened, because of it being a jhod since many years, water started coming out. And the villagers there started recording it and they couldn't save face from it, and they had to, file different papers in court claiming that it was a jhod. तो रिवर ये रिवर और पॉन्ड्स के फ्लड प्लेन्स को भी एनक्रोच कर करके एक तो हमने उनके कोर्स को डैमेज किया है, एक तो हमने वहाँ की बायोडाइवर्सिटी लॉस भी ख़त्म करी है. इफ़ेक्टिवली हम लोग अभी भरतपुर से वापस आए तो वहाँ की जो बर्ड सैंक्चुरी है, इट्स इफेक्टिवली जस्ट इनफ वाटर बॉडीज़ फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू स्टॉप बाय. सो देयर इज़ ऑब्वियसली एन एस्थेटिक वैल्यू टू इट. आपके गाँव के आसपास भी, अगर दिल्ली में भी एक ज़माने में अगर पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज़ ज़्यादा थी तो यू वुड सी a kind of very small biodiversity also existing around it that we destroyed. हमने नॉर्दर्न इंडिया में चावल और गेहूँ उगा के अपने सारे वाटर सोर्सेज को इतना ड्रेन कर दिया है दैट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ बैंगलोर और दिल्ली, इफ गुड़गांव और दिल्ली आर सीइंग अ बैंगलोर लाइक सिचुएशन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज वी आर वेरी क्रिटिकली लो व्हेन इट कम्स टू वाटर मैनेजमेंट. ना हम लोग बोरवेल यूजेज को इंसेंटिवाइज करते हैं, तो टिपिकली लोग ब्राइब करके बोर लगा लेते हैं अपने घर पे, या फिर तो वी आर नॉट प्लानिंग आवर वाटर रिसोर्सेज वेल, एंड हिस्टोरिकली वी हैवंट बिन. तो आपने एक वाटर रिच सिटी जैसे दिल्ली, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिल्ली ग्रू वाज बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू यमुना, जो अब हमारे लिए सुअर वाटर डिस्चार्ज सिस्टम है, क्योंकि मतलब हम लोग और क्या यूजेज है रिवर का, सुएज वाटर ही तो डिस्चार्ज करने के लिए बनी होती है. आयरॉनिकली हम लोग जो रिवर्स को एक होली लुक देते हैं, हम ही लोगों ने सुअर वाटर डिस्चार्ज करना शुरू किया उसमें, और अब हम लोग आर्टिफिशियल लेक्स बनाना चाह रहे हैं उसी शहर में. तो आयरॉनिक है कितना ज़्यादा कि यू आर ट्राइंग टू रिवर्स द डेकेड्स ऑफ हिस्टोरिकल डैमेज. It brings me back to that dystopic image that, so we are Biharis, right? So for us Chhath Puja is a very important festival. That dystopic videos that I saw of people going into that polluted river and still venerating, like, that's why I have to give it to Indians. हमारा जो faith है वो अभी भी है. फेथ है तो लाइक वेयर इज द गवर्नमेंट लैकिंग. एक तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि
पॉन्ड्स और रिवर्स और इनका यूजेज एक कम्युनिटी साइंस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था पुराने समय में भी, अभी भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एसेंशियल. एंड अगर आप इंडिक सिविलाइजेशंस को इन जनरली देखो तो उसमें स्पेसिफिकली पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशंस को आप देखेंगे तो जितनी भी मेजर सिटीज़ होती थी वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वर डेवलप्ड अराउंड अ टेम्पल. ठीक है, टेम्पल के आसपास यू हैड people living, and mostly obviously caste stratification was obviously there. एंड नदी के बहुत पास रहती थी, एंड उस नदी के थ्रू ही वो कुंड बनाते थे अलग अलग, और कहीं कहीं वो ऑब्वियसली क्या कहते हैं जो वेल्स होती थी वेल्स भी बनाते थे. तो वो आपको क्या करना था कि एज वी अप्रोच्ड द न्यूअर टाइम्स, द मोर मॉडर्नाइज्ड एरा, आपको उसको एक बहुत हारमोनियस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना था इन अ मॉडर्न सिस्टम लाइक अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज डिड. बट आपने तो बस अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों के खिलाफ वॉर क्रिएट करके यूरोपियन मॉडल को पहले इम्पोज करने की कोशिश करी. ना तो आप घर के रहे ना घाट के रहे, पन इंटेंडेड. इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँ. That was good. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि एक्चुअली अब हम लोगों का लैंड यूजेज पे एक पर्पस हमेशा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ. हम सबका ऑपरेट करने का तरीका हो गया है कि लैंड यूजेज है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. पहले हम लोग अगर आज इंडिजिनस कल्चर्स और इंडिक फिलॉसफी को रिवाइव करने की बात करते हैं तो कितने लोग हम अपने प्राइम ज़मीनों पे आजकल मंदिर बनाएंगे. ये भाई सोचने की बात है कि अगर हम लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा था तो कोई बड़े प्लॉट में खाली जगह एक लंबी छोड़ के कोई मंदिर थोड़ी बनाएगा आजकल. तो आप तो पूरी ज़मीन यूज़ करोगे कमर्शियल पर्पस के लिए. तो नहीं भाई, मैं क्रेडिट दूंगा ना उस बात पे. तो इसमें जैसे हम ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ दो बहुत ही सिमिलर फेस्टिवल्स है एग्रीरियन कम्युनिटीज़ के. जैसे भाई गोवर्धन पूजा की बात कर रहे थे. गोवर्धन पूजा के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, गाय का गोबर. गो रीड MCD एक्ट. MCD में कोई भी सरकार रही हो जो काओ के अगेंस्ट हो, चाहे प्रो काओ हो, दिल्ली में वो आपको गाय पालना अलाउड नहीं करेगी. एंड दैट्स आयरॉनिक. आपने पूरे देश में एक तरीके की पॉलिटिक्स से बेनिफिट लिया, बट बिकॉज इज दिल्ली आप यहाँ गाय नहीं रख सकते हो. आप गाय नहीं रख सकते तो आप गोवर्धन क्या ही बनाओगे. So one point that I want to add as to how politics can change. गोवा में तो बीजेपी गवर्नमेंट है. क्रिसमस के टाइम पे गोवा की गवर्नमेंट बीजेपी वाली कैंपेन करती है कि आज बीफ सब खाएंगे, सब बीफ खाएंगे गोवा में. लाइक तो आई एम लाइक भाई तुम लोग चुप हो जाओ यार, लाइक ना, शट अप. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आई थिंक फॉर द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज होली. हम सब होली जलाते हैं, और होली जलाने का सिंबॉलिक रीजन है कि हम अपनी पहली फसल, इट्स लाइक अ बली टू द हार्वेस्ट. कहाँ है हार्वेस्ट? खरीद के ला रहे हैं किसी से, झाड़ काट रहे हैं उससे खरीद के ला रहे हैं, वो जला रहे हैं. और दैट इज आई थिंक साल में ये 2 ही बार हैं जब हमें कुछ एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाते हैं. अच्छा आज हमने गेहूं की बलि जलाई जो 5 रुपए की खरीदी थी. Absolutely. And just a shout out to Paras Tyagi doing wonderful work. And I think we had a lot of conversations, around how to say, because I used to write that I come from a slum, because जब मैंने आंखें खोली वो slum था, वो गांव नहीं था. पारस भाई बोलते थे यार गांव बोल उसको, क्योंकि he has been working in this space. तो I used to say भाई सब्र रखो, सब कुछ बोलूँगा, आगे आगे बोलूँगा सब, लेकिन नरेटिव बनने दो. अभी पीपल नो मी कि ये संगम विहार में रहता है, ठीक है. अभी धीरे धीरे आई कम टू लाइक कमिंग फ्रॉम स्लम ब्रैकेट रीड अर्बनाइज्ड विलेज. So this is how you build narrative. This is how we build collective memory. कि हम कैसे सीख रहे हैं एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते करते. डिफरेंसेस विल कम, एंड ऑल्सो विद द सेंस दैट दिल्ली का जो नेटवर्क था, जस्ट टू टॉक अबाउट वाटर, इतने ज़्यादा कुएं, इतने ज़्यादा हौज जो बोलते हैं हम उनको, हौज रानी, हौज खास, ये तो जो पहले रूलर रहे, जो हमारी कम्युनिटीज़ रही, दे वर वेरी अवेयर कि यहाँ पानी की कमी होगी, क्योंकि एडिड रीज़न है ना. ऑफ कोर्स लाइक पीपल वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. झोड़ इसलिए बनते थे. अब द साइंस ऑफ कंक्रीट जंगल जो वो कॉन्सेप्ट आया है, एंड दैट्स इट्स अ फेलियर ऑफ public policy which he has been working very diligently on. And he also shared a point जो हम हरित क्रांति की शुरुआत बोलते हैं, कि
वो दिल्ली से हुई। वो एक गांव पड़ता है जौंती गांव, वहाँ पे हरित क्रांति की पहली जो बीज बोए गए, दैट वाज इन दिल्ली, इन वन ऑफ द विलेज ऑफ दिल्ली। तो इस तरह का जो हमारा जो एग्रीकेरियन जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो एक तरह से भूलते जा रहे हैं हम। आई थिंक वी गोना ओन दिस पार्ट, लाइक जो भी हमें मिलता है ना, वी सेलिब्रेट सक्सेस कि ये भी हमारे यहाँ हुआ, ये भी हमारे यहाँ हुआ। देखो तो लाइक इट्स जस्ट a point कि which क्योंकि अभी NCR भी like I would always say कि that the Delhi Dihad project is pretty conscious of what is happening in NCR as well, and the young people that has been coming up। तो बहुत सारे लोग हैं जो again I would say उनको बोलना नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि सर छोटू राम ने यह सिखाया कि किसानों बोलना सीख लो। और वो हमें शायद अभी तक वो हम काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद हाउ टू पुट आवर पॉइंट्स फॉरवर्ड। और ये शायद हमारे प्रोफेशन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, फिर हमारे कल्चरली और जो जनरेशन वाइज इतना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन जस्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो विद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गगन भाई टू टॉक अबाउट his interaction and what he wrote about मक्के की रोटी और सरसों का साग, और बाजरे की रोटी और सरसों का साग, something like that. It was a very interesting point of writing. Please share. I think मेरा आंसर भी आ गया वैसे। what I would Puneet have guessed correctly because I was just going to guess by I was just going to guess by what they typically eat in southern Haryana and apply it. Sir. so I think what Sir Chotu Ram told the whole agrarian community is like, इसमें पॉलिटिकल साइंस में वर्ड भी है एपिस्टोमोलिक इनजस्टिस, कि आपके पास वो शब्द ही नहीं है कि आप समझा पाओ। आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ वर्सेस फाइट, दिस इज नॉट दिल्ली देहात वर्सेस समबडी, इट्स जस्ट टेलिंग समबडी मे बी अ रिफ्यूजी फ्रॉम नाउ व्हाट वी कॉल पाकिस्तान इज दैट सी माई दादी एंड योर दादी आर सेम, दे योर दादी हैड लैंड्स which you were forced to leave, and my dadi was also forced to leave the land which are here for you or anybody, for the whole nation, for the whole nation. And that's why I was writing this a little poem. It was saying कि उसने मुझे बताया, मेरी महबूबा ने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान में एक जगह गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला भारत का हिस्सा नहीं है। मैंने उसको बताया मैं भी दिल्ली के एक गांव से हूँ, दिल्ली में अब कोई गांव नहीं है, हम दोनों ही शहर में रिफ्यूजी हैं। तो मगर ये बहुत गहरी बात गगन भाई ने भी कही, दैट दिस इज़ नॉट एन अस वर्सेस देम बैटल आपकी तरफ से भी, इट्स अ फाइट फॉर आइडेंटिटी इन इट्स ओन राइट। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच मिसलेड यू। जैसे क्योंकि पार्टीशन रेफ्यूजीज़ ने अपने हक में बहुत सफ़र किया, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी ज़मीनें खो के सफ़र किया, तो गेन किसने किया? तो देर इज़ मोर लॉस इन मेकिंग एन अस वर्सेस देम फाइट। इन दिल्ली NCR आप लोगों की विलेजेस हैं, आप लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री है, कम्युनिटी है, एंड नाउ फॉर वट एवर रीज़न, इनवर्ड माइग्रेशन, partition, many settlers have come in. So many of us are happy to start with the premise that neither are going anywhere, but at least an identity can be established, at least an acknowledgement can be done, and at least welfare can be worked upon. So that is the way I like to deal. Idealistic view है, मगर मतलब hopelessness के साथ तो जी नहीं सकते। There is also a loss of a lot of culture, and I'm talking particularly of architecture. मैं पुनीत भाई की पोस्ट में देखता हूँ इतनी सारी जो पुरानी हवेलीज या फोटोज दिखाते हो। इनफैक्ट मेरे पिताजी भी बताते हैं मुझे, वो हवेली नहीं रही हमारी, वहाँ पे भी वो ही टेल्स अस द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट यूज्ड टू बी यूज्ड, एंड विच ब्रिंग्स मी टू अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, वो कभी हुआ नहीं, विच वाज द लैक ऑफ एस्थेटिक्स इन अर्बन प्लानिंग इन दिल्ली। एंड आप लोगों का भी आउटलुक इस चीज़ में मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि हम गांव में भी यही बात करते हैं कि गांव में जाते हैं, वहाँ जाने का मन नहीं करता, पर पुराने अगर गांव देखो जैसे दौलतपुर वगैरह, मेरी मम्मी का जो गांव है वहाँ चलो वहाँ पे भी अब बंगले बन गए, तो पर वहाँ पे पहले जब मैं जाता था मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि देयर वाज अ सेंस ऑफ एस्थेटिक मेंटेन्ड, एंड लाइक जय वाज सेइंग, देयर द ओल्डर प्लानिंग वाज दैट देयर यूज्ड टू बी अ टेंपल एंड अराउंड इट देयर यूज्ड टू बी अ मार्केट प्लेस, देन द हाउसेस एटसेट्रा. So as we grow nationally and on a macro and a micro level,
तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ दैट इज़ अ लैक ऑफ एस्थेटिक्स. मेरा बाहर रोड पे चलने का मन नहीं करेगा कभी, सिवाय लुटियंस के ऑफ कोर्स. लुटियंस में दैट इज मेंटेन. हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो पॉलिटिशियंस रहते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो सबसे अच्छा रहेगा. But yes, I think we need to discuss this when we talk about urban planning, etc. as well. That is the loss of culture, absolutely. and a lack of aesthetics. आप म्यूजिक ले लो. आयरॉनिकली सॉरी बात काट रहा हूँ, आयरॉनिकली बस एक अंग्रेज की डेवलप करी हुई एरिया हमें चलने लायक लगती है. और हम लोगों ने भी अपना अर्बन प्लानिंग, एक तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट प्रोफेशन, इटालियन मार्बल, इस तरह के घर, यार आपका कल्चर आपके घरों से रहता है ना. आप कहीं ना कहीं तो जैसे वो झरोखे टाइप के कॉन्सेप्ट, थोड़ी थोड़ी एक तरह का मंदिर और एक तरह के, जैसे मैंने इस घर पे भी बहुत प्राउडली सबसे ऊपर एक हनुमान ध्वज लगाया हुआ है कि वो तो घर पे दिखना चाहिए ना. आप एटलीस्ट ये तो मत भूलो कि हम लोग गांव देहात में या अपने इंडियन कल्चर में घर कैसे बनाते थे. मतलब जस्ट टू ऐड अ स्मॉल पॉइंट, यू फाइट ओवर मंदिर है या मस्जिद है, आपका घर तो कुछ भी नहीं लगता. Exactly, ना तो मंदिर लगता है ना तो मस्जिद लगता है. एब्सोल्युटली. अभी अब वही ना, एक ही डेड बीट पैटर्न आप रिपीट करते रहते हो. अब क्या होता है कि आई हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट देयर विल बी सर्टेन ऑपुलेंट कम्युनिटीज एंड दे विल हैव एन आइडिया अबाउट अ हाउस. और इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनवर्ड्स व्हाट दे विल से कि एक तो हमारे माइंड इतना अच्छे तरीके से कॉलोनाइज करके गए ब्रिटिश, इज समथिंग दैट अफेक्ट्स अस इन आवर डेली लाइव्स. जिस भाषा में भी हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं बात करना, इन लाइक पब्लिक ओकेजन्स, उसी से पता चल जाता है. और अब ऐसा हो गया कि हाँ, ये देख रहे गोरे लोग ऐसे कर रहे हैं ना, तो हमें भी ऐसा करना है. लाइक ओ वाओ. तो बेसिकली क्या होगा कि एक फ्लोर प्लान होगा, एक डिजाइन होगा, उसी को आप कट कॉपी पेस्ट करके पूरा रिपीट हो रहा है. there's a thing called an NPC which is a non playable character in video games. एक पॉइंट के बाद अगर आप अपनी सोसाइटी को देखोगे ना, तो इंडियन सोसाइटी एट दिस मोमेंट इज ऑपरेटिंग लाइक NPCs which is being controlled by a more superior type of artificial intelligence which is colonialism. मंदिरों में टाइप. Yes. नहीं, अर्बन प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. मतलब द फर्स्ट 2 विलेजेस इन दिल्ली जो अर्बनाइज हुए वॉज माई विलेज, मदनपुर खादर, एंड वसंत कुंज वाला जो सारे विलेजेस की बेल्ट है. पहला दिल्ली DD एक्ट वहीं पे स्टार्ट होता है. आई थिंक उस वक्त जो होल आइडिया ऑफ सोशलिज्म टू मेक दिस कंट्री इवन इतनी स्ट्रांग थी कि आप वसंत कुंज के पूरे फ्लैट्स देखिए, आप सरदार के पूरे फ्लैट देखिए, द वेरी आइडिया कि सब लोग बस एक जैसे हो जाएं, वही आपको पूरी अर्बन प्लानिंग में नजर आएगा. उसके बाद जो घर बन रहे हैं वो उसके रिबेलियन में बन रहे हैं कि हमारा घर इतना ब्राइट होगा कि हम इन फ्लैट जैसे तो नहीं दिख सकते हैं. इसमें हमने दिल्ली में क्या करा, और दिल्ली के लोगों के पास क्योंकि फार्म चले गए थे, जो पुरानी हवेलियाँ थी, पुरानी चौपाल्स थी, वो उनको ख़त्म ही करनी पड़ी, क्योंकि चौपाल का कोई रेफरेंस तो रह नहीं गया. और ना, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली की हिस्ट्री नहीं रही तो चौपाल का कोई रेफरेंस नहीं रहा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जिस रीजन से मैं आता हूँ, वहाँ 24 गांव का एक सिस्टम है जिसमें देवली भी है, हम एक ही मेहरौली की जेल एक वर्ड है, जेल वर्ड है जो ज़िला जहाँ से वर्ड निकल गया है, हम एक ही जेल से आते हैं. अब हो सकता है किसी चौपाल पे उन 24 गाँव के बहुत बड़े डिसीजन लिए गए, पर क्योंकि गाँव का नैरेटिव नहीं रहा तो वो चौपाड़ को ही बचा के क्या करेगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड टू द कल्चरल लॉस थिंग. तो एक फेस्टिवल मनाया जाता था पहले दिल्ली में, आई थिंक अराउंड दशहरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सांझी करके, नवरात्रों के आसपास. तो अब लोग कहते हैं कि चितरंजन पार्क है शायद, वो देयर बंगाली सेलिब्रेट नवरात्रि, तो अब वहाँ की नवरात्रि देखनी है या ये देखनी है, नथिंग अगेंस्ट इट, बट यहाँ तो सांझी मनाते थे. सो देयर वाज आइडल ऑफ अ माता पेस्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेस इन विलेजेस, एंड उसको फिर एक पॉट में रख के उस पे एक मोमबत्ती लगा के दे यूज्ड टू पुश इट इन अ वाटर बॉडी नियर देयर विलेज. वाटर बॉडी भी नहीं बची. हाँ, तो Can I add a point to that? It's, I think इसका main the thing is that we have to view Sanatan Dharm / Hinduism, whatever you want to call it, from a perspective of an over-encompassing religious identity. उससे क्या होता था कि बहुत सारी जो ओल्डर ट्रेडिशंस थे, ट्राइबलिस्टिक ट्रेडिशंस थे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के, वो सारे इंक्लूड होने लग गए इन लाइक अ सिंगुलर कैटेगरी. जो तुम्हारी लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल ट्रेडिशंस थे, हाँ कहीं कहीं वो आपके कुल देवता या कुल देवी बन गए, लेकिन जो आपके मेन डाइटीज़ थे, आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एब्राहमिक रिलीजन्स, लेकिन जो आपके मेन डाइटीज़ थे आपने उसको वो ट्रिनिटी में इंक्लूड कर दिया. कोई आपके भगवान विष्णु बन गए, कोई आपके शिव बन गए. उसकी वजह से जो ओरिजिनलिटी थी उन भगवानों की
वो डेटीज की वो पूरी तरीके से चली गई इसमें The collective identity also, it ceases to exist, and that is what I'm saying. The lack of aesthetic, it comes from that the loss of collective itself, because the collective is so weak, and its revival is happening, but I don't know how it is happening. It is very chaotic how it is being revived. What you called Sanatan Dharam. And that is why we see bathroom tiles inside our mandirs. And you look at the older architecture. I don't know why we are not reviving that. Because I think aesthetics and aesthetic experience, it precedes everything, in my opinion. Like you may develop your towns, you may develop your economy, but if the aesthetic experience doesn't go along with it, you are going to fail in all your endeavors. उसमें मैं बस यही ऐड करूँगा कि एक टेस्ट वाला टूरिस्ट हमेशा दुबई की जगह इस्तांबुल जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ किसी एक सिविलाइजेशन का कल्चर दिखता है, आपको बाइजेंटाइन एम्पायर दिखता है, आपको ऑटोमन एम्पायर दिखता है। दुबई में आपको 100 फ्लोर की बिल्डिंग दिखती है, आप सोचते हैं यार इतना ऊपर बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत भी है। तो दैट्स व्हाई आर वी ट्राइंग टू फॉलो दैट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आई ऑनेस्टली लाइक गुड़गांव, आई लाइक लिविंग हियर, बट यहाँ का भी जो अर्बन डेवलपमेंट है, हम लोगों ने कहीं पे भी लोकल एस्थेटिक्स, लोकल टेस्ट को कभी फैक्टर ही नहीं किया। बड़े बड़े बिल्डर्स ने इतने 100 करोड़ के फ्लैट बनाए जिसमें ऑल द टेस्ट इज़ इम्पोर्टेड, इट्स अ कल्चरल इम्पोर्ट, एंड वी डोंट सी द इम्पैक्ट ऑफ रियल एस्टेट एंड लैंड यूज डेवलपमेंट, बट धीरे धीरे हमारा कल्चर ही ऐसे इरोड हो जाता है। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कल्चरल एरोजन, एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि देयर इज़ नो रिवॉर्डिंग द लोकल हीरोज ओवर हेयर, या फिर द विलेजेस नेम। फॉर एग्जांपल कोई मेट्रो स्टेशन का नाम है या कोई लोकेलिटी का नाम है, मंगोलपुर कला का नाम, लोकेलिटी का नाम मंगोलपुरी। पूरा इंडिया मंगोलपुरी के नाम से जानता है, मंगोलपुर कला को कोई नहीं जानता। तो ऐसी जगहें, अब रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, सराय काले खां के पास बिरसा मुंडा चौक बना। व्हाट डज बिरसा मुंडा हैव टू डू हियर? हम बिहार से आते हैं और बंगाल में भी सिमिलर माइंडसेट ये है कि हमारे आइडिया ऑफ हिंदुइज्म में वेजिटेरियनिज्म बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत तो है। ये इम्पोज किया जाता है। तो एक बहुत ही लाइक टुवर्ड्स यूपी ब्रज साइड का ज़्यादा है ट्रेडिशन, जहाँ पे बोला जाता है कि नहीं तुम्हें वेजिटेरियन ही होना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा में ऐसे बलि चढ़ती है बकरों की, हमारा तो मटन का ही प्रसाद बनता है। तो अब ये इम्पोज करना है, जैसे आपने हिंदी इम्पोज करी थी हम सब पे, हमारी लोकल भाषाओं को ख़त्म करा था, अब आप एक और ट्रेडिशन इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पुशबैक आएगा लोगों का, एंड वो रेजिस्ट करेंगे। एनीवे, लाइक फाइनल थॉट्स, अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, आई थिंक अब थोड़ा फाइनल थॉट्स बोल देते बिफोर द थिंग रन्स आउट ऑफ मेमोरी। बिफोर उसी में मैं एक लास्ट चीज़, मैं अपनी लास्ट ही चीज़ बोलूँगा कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, चाहे वो यूपी के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों, सब ने इन बीइंग क्लासिफाइड, एंड दिल्ली एनसीआर मेनली, इन बीइंग क्लासिफाइड एज हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स लूज़ किया है, क्योंकि सब एक यूनिफाइड आइडेंटिटी में कि नीचे तमिलनाडु, उधर महाराष्ट्र, ऊपर हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स। तो तुम मेरे को कह रहे हो रायपुर से शिमला तक एक ही कल्चर है, क्योंकि उसमें बीच में कोई कल्चर नहीं आता, रीजनल डाइवर्सिटी नहीं है, हमारी अपनी लैंग्वेजेस नहीं है। हाँ, रही थी जो कि धीरे धीरे अब सब हिंदी, चलो हिंदी लैंग्वेज तो मेरी तो मातृभाषा है, तो मैं आई एम नॉट गोइंग ऑन अ रैंट अगेंस्ट द लैंग्वेज, बट वी लॉस्ट आवर कल्चरल आइडेंटिटीज, and the state, the media, the academic institutions started looking at it as one single unit. Oh, Hindi heartland states are backward, Hindi heartland states are more communal, there is more rioting there, टैक्स ज़्यादा तमिलनाडु के लोग देते हैं, डेवलपमेंट हमें, बीमारू स्टेट एक शब्द एग्जिस्ट करता था, किसी और रीजन के बारे में आप बीमारू कह सकते हो, यहाँ के लोगों को इंडियन स्टेट के डेवलपमेंट ने लेट डाउन नहीं किया। बिहार में भी जैसे हमने एनसीआर के लोगों की लैंड यूज़ के जो उन पे हैरोइंग एक्सपीरियंसेस आए उसकी बात की, बिहार में इतना रिसोर्स रिच, इतना फर्टाइल स्टेट था, और उधर के आधी लेबर फोर्स यहाँ मज़दूरों का काम कर रही है, तो उससे आपने कहीं अपना डेवलपमेंट में इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया कि सारा आप बर्डन डाल दो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स के अनएडुकेटेड कम्युनली माइंडेड लोगों पे। दोज आर माई फाइनल थॉट्स। विदाउट एंगर वी नीड टू डू पॉलिसी इंटरवेंशन टू करेक्ट दीज थिंग्स। And I think everyone can give their final thoughts and then we can wrap it up. I would just want the three of you to, just briefly give your historical takes on the villages of Delhi once, because I would want that to be out there. Absolutely. So, जब कोलकाता से दिल्ली के लिए जब हमारी कैपिटल ट्रांसफ़र हुई,
So the Britishers wanted to have some land. You know, they wanted to construct all of these, like parliament था उस time पे, Viceroy House और ये सब था. तो the first displaced villages were Raisina, Malcha, Todapur, Dasgura, and also a lot of others as well, which I can remember now. Yeah. So my mother grew up there. in yeah, Todapur. yeah. So, you know, these Raisina and Malchara was totally displaced, and that was the beginning of the thing that we are discussing. You know, the beginning of end of Delhi Dehat. So, उसके बाद वहीं से आज तक, you know, the people we have been losing land, and also in that beautiful name of you know, adding our contribution towards nation building, and also towards like ये चीज़ हमको acknowledge करनी है. When we talk about decolonization, आजकल बहुत हम बात कर रहे हैं. तो let's this project and they're talking about all of these villages of Delhi Dehat is an effort towards decolonizing our history as well. Yeah, thank you. So I think Puneet bhai mentioned a lot of things. So I would just like to tell our future aim of the project that we are discussing over here. A future aim would be to put Delhi Dehat into the mainstream narrative. कोई दिल्ली सोचे तो कुतुब मीनार और लाल किला ही नहीं है, और दिल्ली सोचे तो दिल्ली के गांव भी हैं. दिल्ली सोचे तो छोले भटूरे नहीं हैं, दिल्ली सोचे तो यहाँ का लोकल खाना भी है, जो कि वो जो उस टाइम खाते थे लोग. बाजरे की रोटी हो गई. और आजकल तो Millet, millets बोलते हैं. हमारे यहाँ पे भी खाते हैं. बाजरा was like our staple diet as well. So यही सब चीज़ें हैं, and we are striving to create a website, to create a digital archive which mentions each and every village of Delhi, कि वहाँ के जो भी land records वगैरह हैं वो उसमें सबको मिल जाएंगे easily. So accessibility won't be a thing which is stopping the villages right now. And Jio के बाद तो अब सब कुछ accessible है, तो इसलिए ये revolution हो रहा है. I would just like to end with one line, one very famous line, कि दुनिया जिसे हमें दिल्ली उसकी जान, तो इस जान को हमें बचाना होगा. बिल्कुल. पर हम दिल्ली देहात की, हमारी दिल्ली देहात की लाइन अलग है. हम कहते हैं कि हम पुरानी दिल्ली से भी पुराने हैं. हिस्टोरिकली हम पुरानी दिल्ली से पुराने हैं. मतलब मुझे लगता है कि एक जीता जाता एग्जाम्पल अगर हमें कंक्लूजन में मुझे बोलना है, हमें मालचा जाना चाहिए. मालचा दिल्ली का सबसे महंगा सुंदर रोड है. मालचा क्योंकि जब किंग्सवे कैंप आया, जब किंग्स अंग्रेज़ 1911-12 में दिल्ली में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्योंकि उस वक्त संभाल रही थी, तो किंग्सवे कैंप जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ पे सारे किंग्स आए और जितने भी वाइस रॉयर्स थे उनका स्वागत किया. उसी वक्त क्योंकि द आइडिया ऑफ हाउ द ब्रिटिश इमेजिन्ड अर्बनाइजेशन वाज कि गाँव को डिस्प्लेस करके शहर बसाना होता है, तो उन्होंने मालचा को शिफ्ट कर दिया सोनीपत में. मालचा आज 2 जगह एग्जिस्ट करता है. आधा मालचा इन मेमोरी मालचा इज़ इन दिल्ली, बट मालचा की जो पूरी पॉपुलेशन है आज सोनीपत में है. सो फॉर अ लॉट ऑफ जनरेशन जो आज वहाँ जिंदा है, उनसे पूछोगे जी आप मालचा के हो? हाँ जी मैं मालचा का हूँ, पर उस वाले मालचा का. सो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. इट चेंजेस आवर होल इमेजिनेशन ऑफ लाइफ की इनके लिए आइडिया. और आई थिंक वी विल फॉर्चुनेट इनफ हमारे गाँव की हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के पार्ट हैं. कि मेरे लिए आज हमारे जो आज सरिता विहार साउथ ईस्ट दिल्ली में एक शहर है, उसके बस स्टॉप को सरिता विहार बस स्टॉप कहते हैं. इन माई कलेक्टिव मेमोरी ऑफ द पीपल इट्स कॉल्ड प्याऊ. सो वो मेरे लिए प्याऊ है, किसी और के लिए वो. आई थिंक बहुत सुंदर चीज़ें दिल्ली को उस एंगल से देखना, और हमारा पर्सपेक्टिव प्रयास यही है कि दिल्ली को उस एंगल से भी देखा जाए कि प्याऊ भी यहाँ कभी था. जी थैंक यू. Dhruv, any final thoughts? I'm just very grateful to these guys for what they're doing. I would just like to say, like collectively, we should take this forward as responsibly as we can, and not in a sense of bitterness towards other communities, or in a sense of pity or feeling sorry for ourselves. क्योंकि हम सारे ठाड्डे लोग हैं, ठीक है. हमें ये नहीं भूलना चाहिए. सारे बहुत ठाड्डी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी तगड़ी कम्युनिटीज़ से आते हैं. We've been through a lot together. And this unity can take us forward. That's all.
Okay, thank you. To add to what, I mean, you guys survived medieval Islam, man. That you have to be hardcore for that. I mean, like that's not controversial. Yeah, yeah, chalo, I think we'll conclude here. It was a great conversation we had. Thank you. Thank to you for everyone. joining us. Thank you to Please Gagandeep keep, ji. Thank you to Parth. Parth. Thank you to Puneet Bhai. Thank you to Dhruv. Thank you to Jay. Thank you to Raj. And Thank you to please, everyone. please follow Delhi Dehat. Please follow Delhi Dehat Please, on Instagram. and please subscribe to Yeah, Indicast. please subscribe to Indicast. हमें भी कर देना please. Thank you. Bye. Thank Love you. you guys.